very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to be a part of our eTuition family. My dear class 10 students, today we are at the last chapter of our science book, that is chapter 16, Management of Natural Resources. So let's see, because in the previous chapter we have studied what are the different kinds of resources present in our environment, and in today's chapter we will be discussing how we will manage these resources. So let's get started. So let us see what are the points we are going to discuss today. We will be discussing about natural resources, what is the need to manage these natural resources, and what are 3 R's, and forest and wildlife, about the stakeholders of the forest like Bishnoi community, Chipko movement, water, coal and petroleum, what are their importance, let us see, right? So natural resources, simple, the resources we get from the nature, right? Without the action of mankind. It means whatever the nature is providing us from our natural environment, that is called as our natural resource, like air, soil, plant, animals, these are our natural resources, right? Now, so natural resources are divided into 2 types, renewable and non-renewable. What are renewable resources? Like solar energy, air, wind, water, tides, flowing, soil, plants, ये क्या है? Renewable. Non-renewable क्या है? Fossil fuels and oil, coal, natural gas, metals, minerals, iron, copper, non-metals, minerals, salt, these are the things, right? Okay. So now, what is the need for managing natural resources? We know that our population is increasing day by day. तो जैसे ही population बढ़ेगी, the demand will also increase. So if हम अपने demand के लिए, हम अपने demand को fulfill करने के लिए चले, so the earth, the nature, the mother nature will get destructed, and it's being destructed actually. So it is our duty to manage the natural resources, because we have borrowed our natural resources from our future generation, right? So we have to return them ना. So ये अच्छी बात थोड़ी ना होती, हमने किसी से उधार मांगा है, हमने अपने पूर्वज से गिफ्ट के तौर से पाया है, और हमें इसे किससे देना है? हमारे फ्यूचर जनरेशन को. तो जैसे आप सामान लाए हो उसी तरह तो लौटाना पड़ता है ना. We cannot affect it, right? So for this cause only we need natural resources. So this is called as sustainable development. Okay, for the future generation, care for the future generation is called as sustainable development. So main cause is population, जिसकी वजह से we are depleting our natural resources. So we have to be very much conscious, because these natural resources are not unlimited. They are present in a limited amount. So we have to think twice before using anything, or we should try to minimize the wastage of these resources, right? Okay. Next is Ganga. You have heard about Ganga river. Yes, it is the holy river, right? Gangotri in the Himalaya to Ganga Sagar in the Bay of Bengal. आपको पता है ये नदी ना, ये बहुत पॉल्यूटेड हो गई थी, राइट? जिसमें डेड बॉडी, सीवेज वाटर, इंडस्ट्रीज के वेस्ट, पीपल यूज टू थ्रो गार्बेज इनटू इट. तो जिसकी वजह से गंगा पॉल्यूशन लेवल बिकम वेरी हाई, जिसको कंट्रोल करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लिया गया था इन 1985, और गंगा के पॉल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से. सो we must believe in reuse, reduce and recycle. We have to reuse things, we have to reduce the use of this chemical products like non biodegradable products, and we should try to recycle these things. Okay, now forest and wildlife. See, in forest plants are there, animals are there. So a loss of biodiversity और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये क्या होता है? देखो, मान लो कि हमने जंगल काट दिए, तो उनके बायोडाइवर्सिटी, ये जो एनिमल्स थे, उनके जो घर थे वो उजड़ गए, तो क्या होगा? और क्या है, ये जो लोगों को हम क्या करते हैं कि जंगल काट के हम कुछ दूसरा बनाते हैं, राइट? और कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि द पीपल हु लिव इन और अराउंड, जो जंगल के अंदर फिर जंगल के आसपास रहते हैं और अपने डेली लाइफ के प्रोडक्ट के लिए वो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं. और कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं,
है ना। और क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जैसे कि जो लोग बीडीज और पेपर मिल से वो क्या करते हैं, जंगल से सामान लेके दे यूज टू मेक देयर प्रोडक्ट्स, राइट। एंड द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट, वो क्या करते हैं, नेचर को कंजर्व करने के बारे में सोचते हैं। चलिए देखते हैं। सो लोकल पीपल, जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको फायरवुड चाहिए, टिम्बर, थैच्ड रूफ के लिए चाहिए, राइट। बैम्बो से वो क्या करते हैं, बास्केट हर्ट वगैरह बनाते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स करते हैं, वुड से बनाते हैं। केटल को, अपनी जो गाय भैंस जिसको उन्होंने रखा है, पालतू जानवर को, उनको वहाँ पे चराने के लिए लेके जाते हैं। सो दे आर यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। और क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो क्या करते हैं, कुछ बेनिफिशियल ट्रीज लगाती है, जिनसे उससे क्या मिले, उनको क्या मिले, कि उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, जैसे कि पाइन, टीक, यूकलिपटस, इनके जो वुड हैं, दे दोज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर मेकिंग फर्नीचर। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल प्लांट दिस काइंड्स ऑफ ट्रीज, दे विल कट एंड दे विल जनरेट सम रेवेन्यू। नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज देखिए इंडस्ट्री के लिए हमें बहुत बड़ी एरिया चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, विश टू कट डाउन द फॉरेस्ट, राइट। और हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है, पेपर, लैग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इनके लिए हमें वुड चाहिए होता है, फॉर विच वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, राइट। सो वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुसियास्ट, ये क्या करते हैं, नेचर को कंजर्व करते हैं, राइट। ये एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, इन सबको क्या करते हैं, दे यूज टू कंजर्व देम, दे यूज टू प्रोटेक्ट देम, ओके। आपने एक स्टोरी सुना है बिश्नोई कम्युनिटी की। ये लोग क्या है, ये जो राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी हैं, ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं, दे आर द नेचर लवर्स। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, ठीक है, उन्होंने अपने पैलेस बनाने के लिए अपने मंत्रियों से, अपने सैनिकों से कहा कि गो टू दैट विलेज, पर्टिकुलर विलेज, एंड कट डाउन खेजड़ी ट्रीज, ओके। खेजड़ी ट्रीज आर वेरी फेमस एट दैट पार्ट। तो जब वो लोग गए वहाँ पे कट करने के लिए, वहाँ के लोगों ने क्या किया, अमृता जो थे, तो उन्होंने क्या किया, अमृता देवी नाम की एक लड़की थी, उन्होंने क्या किया, सारे ट्रीज़ को वो लोग पकड़ के खड़े हो गए, उनको गले लगा के खड़े हो गए। इफ़ यू वांट टू कट डाउन द ट्रीज, यू हैव टू कट आवर सेल्स फर्स्ट। सो जो मिनिस्टर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उन लोगों को काट दिया। जब राजा ने ये बात सुनी, ही बिकेम वेरी सैड दैट हाउ द पीपल लव, how this Vishnoi community loved the nature, that they died for the life of a tree. From that day he understood the importance of trees, okay. और एक चिपको मूवमेंट था, इसमें भी लोग क्या कर रहे थे, चिपक के रह गए थे, किसके साथ, जो पेड़ के साथ चिपक के रह गए थे। नाउ वेस्ट बंगाल साल फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, साल ट्री जो है इसको कंजर्व करने के लिए वेस्ट बंगाल में इन 1970 में, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे साल ट्रीज को काट दिया गया था। तो इसीलिए उसको क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए 1983 तक हमने रिकवर कर लिया था। वहाँ पे बहुत सारे साल के ट्री लगाए गए, जिसे साल्विकल्चर बोला जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो रिस्टोर हो गया। तो वैसे ही हमें मेजर्स लेने चाहिए। फिर आता है वाटर तो हमें ज़िंदा रहने के लिए वाटर इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वाटर के डिमांड भी बढ़ रहे हैं। तो वाटर को कैसे कंजर्व करें, डैम, कैनल सिस्टम भी कर सकते हैं, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग, घर के ऊपर टैंक्स बना के ऐसे भी हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो डैम्स एंड कैनल क्या है, आप सभी को पता है, इट यूज टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस या फिर जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर हाइट से वी यूज टू मेक द वाटर फॉल, जिसकी वजह से टर्बाइन घूमेगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। तो इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब डैम किसी जगह पे बनता है तो वहाँ के आसपास लोगों को वी हैव टू डिस्प्लेस देम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और उन्हें क्या होता है, वो लोग गरीब होते हैं। सो इफ़ वी आर ट्रांसफरिंग देम टू अनदर प्लेस, वी हैव टू प्रोवाइड देम सम एडिक्वेट कंपनसेशन, लेकिन वो दे नहीं पाते, राइट। तो क्या होता है, पब्लिक मनी से हम विदाउट जनरेटिंग प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स वी कैन नॉट डू दैट, राइट। तो डिफोरेस्टेशन भी होता है, जंगल को काटना पड़ता है, इतनी बड़ी जगह कहाँ से मिलेगी, नहीं तो एनवायरमेंटल ड्रॉबैक्स भी होती हैं इसमें। वाटर हार्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, साइंटिफिक वे से, राइट। हम वाटर को कैसे बड़े बड़े टैंक बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं घर के ऊपर। वैसे ही बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, जैसे खादीन, टैंक, नदीज, बंदरास, ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल वे ऑफ स्टोरिंग द वाटर। ये बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, राइट ना। कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल, है ना, ये
ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज दे आर नॉन रिन्यूएबल, इनको बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, राइट। तो ये लिमिटेड अमाउंट में है। वी हैव टू यूज़ बिफोर थिंकिंग दीज आइटम्स ट्वाइस थ्राइस और मैनी टाइम्स, राइट, क्योंकि इनको वेस्ट करना बहुत ही मतलब क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ओके ना, सी कोल और पेट्रोलियम है, जब हम उन्हें जलाते हैं तो उनसे क्या मिलता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होता है जो कि पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, राइट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के यूज़ को कम करके हमें किसके यूज़ करना है, नेचुरल गैसेस के यूज़ करने हैं। So with this we have completed this part. Now course time, it's a natural resource but it's not unlimited. जैसा कि मैंने आपको बताया, you have to think twice before using anything, क्योंकि natural resource जो है वो unlimited नहीं है कि आपको जितना मर्जी चाहे आप जितना यूज़ करो और जब चाहे आप उसे वेस्ट करो। Okay, it's not unlimited, so you have to think before wasting anything. I hope you have understood this chapter. With this, I would like to request you, be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.